Lecture is about lipid metabolism. In this lecture, we will discuss about some introduction of lipid metabolism, what is required for metabolism, and beta oxidation. So lipids are present in most tissues but are mostly present in fat deposits which occur chiefly under the skin, in the omentum and around the kidneys. Lipids are stored in fat cell called adipocytes in the form of lipid droplets. Each droplet has a core of triglyceride and a cholesterol ester surrounded by a single layer of phospholipid. As you can see in the diagram, the yellow core representing the triglycerol or triglyceride or cholesterol ester surrounded by a phospholipid membrane, and as you can see the red structure around the core is the protein called perilipins. Because lipids are insoluble in water, therefore all the lipids in blood plasma occur in the form of complexes which are made water miscible due to their content of electricity charged molecules such as phospholipids and specific protein. लिपिड जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि उनका जो चार्ज पार्टिकल है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सके। नेगेटिव चार्ज आ सके तो वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और उसको वाटर सोल्यूबल कर सके किसी हद तक। अदरवाइज जो न्यूट्रल फैट होती है वो इनसोल्यूबल होती है वाटर में। The plasma lipids carried in two forms, lipoprotein and free fatty acid. The lipoprotein comprise chylomicron remnant, very low density lipoprotein remnant, also called intermediate density lipoprotein, low density lipoprotein and high density lipoprotein. The free fatty acid, also called non-esterified fatty acid and unesterified fatty acid, represent fatty acid mobilized from fat depots and are known to be metabolically the most active of the plasma lipid. However, these fatty acids are not free but circulate in combination with plasma albumin. The breakdown of fatty acids, or you can say lipids, or beta oxidation resulted in three steps. First one is breakdown and mobilization of triglyceride into fatty acid and glycerol, activation of fatty acid and their transport to mitochondria, and degradation of fatty acid into acetyl-CoA and ATP generation lastly. The first one is breakdown and mobilization of triglyceride into fatty acid and glycerol. वो ट्राइग्लिसराइड कहाँ प्रेजेंट है? वो है एडिपोसाइड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, एडिपोसाइड या जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे एडिपोस टिश्यूज में और जो कि सोर्स है एनर्जी का। As you all know, the energy we are getting from fats are 9 kilocalorie per gram. एंड बीइंग वाटर इनसॉल्युबल, ये कोई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है या प्रॉब्लम है वो भी कॉज नहीं करते। ऑन बीइंग मोबिलाइज्ड अंडरगोइंग लिपोलाइसिस, द न्यूट्रल फैट ऑफ एडिपोस टिश्यू इज स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, जब हमारे पास ग्लाइकोजन सप्लाई लो हो जाती हैं और हमारी बॉडी को एटीपी रिक्वायर होती है तो जो हार्मोन जो है वो रेगुलेट करते हैं वो है ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन। वो स्पेशल ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर पर जाके अटैच होते हैं एडिपोसिट सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर और वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। जी प्रोटीन आपने देखा है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है ये है एडिपोसाइट। ठीक है, एक सेल है, सेल की मेम्ब्रेन दिखाई है, एडिपोसाइट्स की मेम्ब्रेन दिखाई है। ठीक है, जब भी ग्लाइकोजन सप्लाई कम हो जाती हैं या लो हो जाती हैं तो हमें एटीपी रिक्वायर होता है और हमारे पास ग्लूकोज नहीं अवेलेबल बॉडी में एनी मोर, तो फिर फैट की ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है। फैट की ब्रेकडाउन के लिए सबसे पहले जो हार्मोन जो है ट्रिगर होते हैं वो है ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन। वो जाके 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाते हैं एडिपोसाइट सेल की और फिर जाके अटैच होने से ये आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, वो जाके अटैच हो जाता है मेम्ब्रेन के ऊपर। मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होने से जो ग्रीन आपको कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं जी प्रोटीन, उसको एक्टिवेट करता है। वो जी प्रोटीन क्या करती है, वो जो आपको स्काई ब्लू सा नज़र आ रहा है एक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसवर्स पड़ा हुआ, उसे हम कहते हैं एडिनोलाइट साइक्लेज, उसके साथ जाके अटैच करता है जो एक्टिवेट कर देता है एडिनोलाइट साइक्लेज को। और वो क्या करता है, एडिनोलाइट साइक्लेज का क्या काम है, वो एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी क्या करती है, वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करती है और जो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट है वो
टू की प्रोटीन्स पेरिलिपिन ए और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को एक्टिवेट करती है। पेरिलिपिन ए हेल्प, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, वो जो रेड स्ट्रक्चर था वो पेरिलिपिन ए थी। पेरिलिपिन ए क्या करती है, वो फैट के जो ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है या कोई फैट का ड्रॉपलेट है या ग्लोब्यूल है उसको रीमॉडल करती है। रीमॉडल क्यों करती है, ताकि जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम है वो उसके ऊपर एक्ट कर सके और वो क्लीव ब्रेक कर सके ईस्टर बॉन्ड को बिटवीन ट्राइग्लिसराइड। देन जब वो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो ट्राइग्लिसराइड की ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। जो फैटी एसिड है वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं एंड कैरिड बाय ब्लड प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ठीक है, टारगेट सेल पे जाते हैं। द ग्लिसरॉल इज सॉल्युबल विद इन द ब्लड एंड मूव टू द लिवर वेयर इट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट, ठीक है, जहाँ से फिर वो कन्वर्ट होंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब आपके जो स्ट्रक्चर था, जो सिर्फ फैट की ब्रेकडाउन थी, क्योंकि अगर हमें फैट चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें जो ग्लिसरॉल पार्ट है उसको सेपरेट करने पड़ेगा फैट ड्रॉपलेट से। तो उसके सर्टेन स्टेप हैं, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड जो है ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। अब उस ग्लिसरॉल को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले जो हार्मोन एक्टिवेट होते हैं वो है ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन। जब वो हार्मोन एक्टिवेट होते हैं तो वो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर पे जाके अटैच होते हैं एडिपोसाइट सेल्स, ठीक है, जिसकी वजह से जी प्रोटीन एक्टिव होती है। जी प्रोटीन जो है वो क्या करती है, वो जाती है एडिनोलाइट साइक्लेज के पास और उसको एक्टिवेट करती है। एडिनोलाइट साइक्लेज क्या करता है, वो एटीपी को करता है साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट। साइक्लिक एएमपी जो है वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है और प्रोटीन काइनेज ए 2 प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है, जिसमें एक है पेरिलिपिन ए और दूसरी है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। पेरिलिपिन ए जो है वो उस ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करती है और जो ईस्टर बॉन्ड है उनको एक्सपोज करती है। बेसिकली उसके एक्सपोज करने से क्या होता है, जो लाइपेज एंजाइम है वो जाके उन ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है और ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल की डिग्रेडेशन होती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सेपरेट हो जाते हैं। जो फैटी एसिड है वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, उसके बाद जो सीरम एल्ब्यूमिन है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, वो उन्हें लेके जाती है टारगेट सेल पे, और जो ग्लिसरॉल है वो चला जाता है लीवर में फॉर फर्दर रिएक्शंस। After breakdown and mobilization of triglyceride into glycerol and fatty acid, the next step is activation of fatty acid and their transport to mitochondria. Because मैंने आपको बताया था कि जितनी भी सारी ब्रेकडाउन्स हैं या ऑक्सीडेशन है या मेटाबॉलिज्म है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सिंथेसिस होती है साइटोसोल में। तो जब फैटी एसिड सिंथेसिस साइटोसोल में हो रही है तो उसको फिर हमें लेके जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि हम उसकी डिग्रेडेशन क्लास की ब्रेकडाउन क्लास के फॉर गेटिंग एटीपी। सबसे पहले एक्टिवेशन कैसे होगी फैटी एसिड के लिए, से हमारे पास जो है वो पामिटिक एसिड है। पामिटिक एसिड की सिंथेसिस मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब उसी की हम स्पॉज ब्रेकडाउन कर रहे हैं। तो पामिटिक एसिड जो है वो एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, 16 कार्बन फैटी एसिड है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया से पास नहीं करा सकते, ठीक है। वो उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है इतने ज़्यादा बड़े फैटी एसिड मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो फैटी एसिड है या पामिटिक एसिड है उसको उसके को ए में चेंज कराना पड़ेगा, ताकि वो जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास कर सके, ठीक है। तो उसको पास करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर है वो है फैटी एसिड थायोकाइनेज, या हम उसे एसाइल को ए सिंथेटेज भी कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो पामिटिक एसिड है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता मैट्रिक्स साइटोसोल से मैट्रिक्स में। तो जो एसाइल को ए सिंथेटेज है वो क्या करता है, वो क्या पामिटिक एसिड, कोए और एटीपी रिक्वायर होता है इस स्टेप के लिए, ठीक है। तो जो वो पामिटिक एसिड है वो चेंज हो जाता है पामिटाइल कोए में, और इस रिएक्शन में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। जो एटीपी है वो 2 अपने फॉस्फेट ब्रेक करता है और एडीपी की जगह एएमपी में चेंज होता है, और एएमपी में चेंज होता है तो फिर हमारे पास पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि जो पायरोफॉस्फेट है वो इमीडिएटली जो है वो जो डिग्रेड हो जाता है और वो फर्दर रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकता, ठीक है।
सबसे पहले हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए फैटी एसिड को उसके हमें कोए में चेंज करना पड़ेगा, और उसके कोए में चेंज करने के लिए हमें जो एंजाइम रिक्वायर है वो है एसाइल कोए सिंथेटेज और एटीपी। ठीक है, जब वो अपने कोए में चेंज हो जाएगा तो उसकी ट्रांसपोर्ट जो के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर रिक्वायर है उसे हम कहते हैं कार्निटीन। जो कार्निटीन है वो ट्रांसफ़र करता है फैटी एसाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कैसे कि जब एक्टिवेट हो जाता है फैटी एसिड तो हमें उसको मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड होता है, तो हमें एक प्रोटीन चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलूकेज प्रोटीन। और जो असाइल कोए मॉलिक्यूल है, जो फैट का मॉलिक्यूल है, वो सबसे पहले जाके अटैच होता है कार्निटीन के साथ। ठीक है, कार्निटीन के साथ जाके अटैच होता है तो वो जो है असाइल कोए जो है वो सेपरेट हो जाता है, और कोए की जगह उसके साथ जाके अटैच हो जाता है कार्निटीन। और ये जो कार्निटीन है ये एंटर हो जाता है फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और साथ अपने ले जाता है असाइल मॉलिक्यूल, ठीक है, फैटी एसिड को। और जब वो अंदर जाता है तो कार्निटीन जो है, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकता है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो वो वापस आ जाता है और नेक्स्ट साइकिल इस तरह ही चलता रहता है। ठीक है, और जो असाइल कार्निटीन है वो अंदर जाके दोबारा कोए के साथ कंबाइन करता है, कार्निटीन सेपरेट होता है और कोए उसके साथ अटैच हो जाता है। मैं एक दफ़ा आपको रीड कर देती हूँ। द एंजाइम कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1 कैटेलाइज द स्टेरिफिकेशन रिएक्शन फैटी एसाइल कोए प्लस कार्निटीन फैटी एसाइल कार्निटीन प्लस कोए। मतलब जो कार्निटीन है वो कोए को हटा के ट्रांसलोकेट करके उसकी जगह अटैच हो जाता है। या तो ये साइटोसोल में हो सकता है या इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इम्परमिएबल होती है। Pores formed by the protein, namely porins in the outer membrane, allow fatty acyl carnitine produced in the cytosol to pass freely into the inner membrane space, while coe part is left behind. A special transport acyl carnitine carry the fatty acyl carnitine through the inner mitochondrial membrane into the mitochondrial matrix. This occurs by facilitate diffusion. The enzyme carnitine acyl transfer 2 present in the mitochondrial matrix catalyze the reaction fatty acyl carnitine plus CoA fatty acyl CoA plus carnitine. Fatty acyl CoA undergo oxidation in the mitochondrial matrix while carnitine goes back to the cytosol or to the mitochondrial membrane to be reused. Thus carnitine shuttles through the inner mitochondrial membrane to its interior and exterior to transport acyl group from the cytosol into the mitochondrial matrix. The structure of carnitine shows the OH group जिसके साथ जो है वो असाइल ग्रुप जाके अटैच होता है। कार्निटीन हैज़ अनदर रोल इन कंडीशन इन विच एन एक्सेस ऑफ एसिटाइल ग्रुप आर प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कार्निटीन हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग दीज ग्रुप फ्रॉम देयर इनटू द साइटोसोल थ्रू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। The transport of fatty acid into the mitochondrial matrix by carnitine shuttle matrix is inhibited by malonyl CoA by inhibiting carnitine acyl transferase 1 that catalyze the rate limiting reaction in the process. Malonyl CoA is produced during fatty acid synthesis in the cytosol. Thus, when fatty acid are being synthesized, fatty acid oxidation is decreased. अब इस पूरे प्रोसेस में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो है कार्निटीन का। अब कार्निटीन जो है आप कह सकते हैं हम यूज़ करते हैं साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाने को उस फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को। तो उसके लिए पहले उसे एक्टिवेट होना पड़ता है, उसको उसके कोए में कन्वर्ट होना पड़ता है। सपोज अगर हम बात करें पामिटिक एसिड की डिग्रेडेशन की, तो जो पामिटिक एसिड है पहले हम उसको उसके कोए में चेंज कराएंगे। पामिटिक एसिड प्लस कोए प्लस एटीपी रिक्वायर होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और वो फैटी पामिटाइल कोए में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर जो पामिटाइल कोए है जब एक्टिवेट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एसाइल कोए सिंथेज, तो वो क्या करता है, या तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, एक आउटर एक इनर। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से पास कर जाता है एसाइल कोए का मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्निटीन के साथ, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में नहीं जा पाता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पामिटाइल कोए है वो कार्निटीन के साथ कंबाइन करेगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम असाइल ट्रांसफरेज 1। वो कोए को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद जाके अटैच हो जाएगा। तो अब आप इसे कह सकते हैं पामिटाइल कार्निटीन। ठीक है, जो पामिटाइल कार्निटीन है वो पास करता है और आउटर मेम्ब्रेन को और इनर जो आउटर और इनर के दरमियान स्पेस है उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर जो ट्रांसफरेज 2
है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2, वो क्या करता है, वो फिर दोबारा कोए को अटैच करता है और खुद सेपरेट हो जाता है, क्योंकि अब वो मेम्ब्रेन मैट्रिक्स के अंदर आ गया है। ठीक है, अब जब मैट्रिक्स के अंदर आ गया तो अब जो फैटी एसाइल पामीटाइल कोए दोबारा बन गया, वो पामीटाइल कोए अब डिग्रेडेशन में जाएगा और कार्निटीन जो है वो वापस बाहर आ जाएगा। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंथेसिस हो रही है फैटी एसिड की, तो जो कार्निटाइन है वो उसको स्टॉप कर देगा मेलोनिल कोए। ठीक है, और जो है बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हमने मोबिलाइजेशन करा ली, हमने एक्टिवेशन करा ली, हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले आए। अब जो कुछ भी होगा वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, उसके लिए हमें फैटी एसिड की ब्रेकडाउन चाहिए और उससे हमें जनरेट करने हैं एटीपी। अब हमने बात की थी कि हम पामीटाइल कोए को मैट्रिक्स के अंदर ले आए माइटोकॉन्ड्रिया की, तो सबसे पहले उसकी रिडक्शन होगी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज, और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है पामीटाइल कोए में से रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो रिमूव कर दिए जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड पामीटाइल कोए। अल्फ़ा बीटा का मतलब है कि अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड पामीटाइल कोए बनेगा तो फिर हम उसके अंदर एडिशन कराएंगे नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो जो कार्बन नंबर 3 था या जो बीटा कार्बन थी उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेगा। ठीक है, और जो एंजाइम यूज होता है इसमें वो है हाइड्रेटेज, जिसे हम क्रोटोनेज भी कहते हैं। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड पामीटाइल कोए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी पामीटाइल कोए में। बीटा हाइड्रोक्सी पामीटाइल कोए नेक्स्ट टाइप में चेंज होगा बीटा कीटो पामीटाइल कोए में। दोबारा लॉस होंगे 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और मतलब दोबारा उसकी होगी रिडक्शन और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा, और जो बीटा हाइड्रोक्सी पामीटाइल कोए था वो कन्वर्ट हो जाएगा बीटा कीटो पामीटाइल कोए और NADH बनेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास बीटा कीटो पामीटाइल कोए बना था उसके अंदर हम ऐड कराएंगे एक कोए का मॉलिक्यूल। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम असाइल कोए ट्रांसफरेज। तो जो हमारे पास ब्रेकडाउन होगी एसिटाइल कोए सेपरेट हो जाएगा और मिरिस्टिल कोए सेपरेट हो जाएगा। अगर हमने, जैसे मैंने आपको सिंथेसिस में बताया था पामीटिक एसिड की, कि हम 2-2 करके कार्बन ऐड कर रहे थे। ठीक है, और चेन बनती जा रही थी, इसी तरह 2-2 करके जो है वो जो एसिटाइल कोए है वो रिमूव होते जाएंगे, और हमारे पास जो है 16 से 16 कार्बन से जो स्ट्रक्चर पीछे रह जाएगा वो रह जाएगा 2 कार्बन स्ट्रक्चर जो कि एसिटाइल कोए है। ठीक है, जिस तरह सिंथेसिस हो रही है उस आप समझ लो उसके रिवर्स में हमने उसकी ब्रेकडाउन करनी है। सिंपली एंजाइम डिफरेंट है और थोड़ा उसका मेथड डिफरेंट है। ठीक है, अब हमारे पास 14 कार्बन और 2 कार्बन एसिटाइल कोए आ गया। 14 कार्बन जो है वो दोबारा सारे रिएक्शंस में से पास करेगा। सबसे पहले जब वो पामीटाइल कोए की हमने अनसैचुरेशन कराई थी बाय द हेल्प ऑफ डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम से, तो हमारे पास जो बना था अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड पामीटाइल कोए। अब हमारे पास बनेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड मिरिस्टोइल कोए। ठीक है, अब मिरिस्टिक एसिड जो है वो दोबारा इसमें से पास करेगा। मिरिस्टिक एसिड जो है 12 कार्बन स्ट्रक्चर बनेगा और 2 एसिटाइल कोए बन जाएंगे हमारे पास। फिर जिस तरह हमारे पास 7 स्टेप रिक्वायर्ड थे पामीटिक एसिड की सिंथेसिस के लिए, इसी तरह 7 स्टेप रिक्वायर्ड हैं पामीटाइल कोए की ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, और हर स्टेप में हमारे पास एसिटाइल कोए बन रहा है। तो कितने एसिटाइल कोए बने, 8 एसिटाइल कोए बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और 7 FADH बनेंगे और 7 NADH बनेंगे। ये याद रखनी है अपने पास। ठीक है, अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें कि हमें जो फैटी एसिड है उनसे कितनी एनर्जी मिल रही है, 16 कार्बन स्ट्रक्चर से हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि पामीटाइल कोए से हमारे पास 8 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए के यील्ड हो रहे हैं। ठीक है, जब हम 1 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास 10 ATP मिलते हैं। ठीक है, तो अगर पामीटाइल कोए से 8 मिल रहे हैं तो 10 × 8 80 ATP हमें मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोए की ब्रेकडाउन से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 7 NADH और 7 FADH भी बन रहे थे। 1 NADH जो है 2.5 ATP देता है और 1 FADH 1.5, तो इसको कैलकुलेट किया 28, तो टोटल हमारे पास 108 ATP बने। लेकिन जब पामीटिक एसिड से हमने पामीटाइल कोए बनाया था
तो हमने यूज़ किया था 1 ATP का मॉलिक्यूल, तो हमारे पास बने फिर 8 तो यूटिलाइज हो गया, तो पीछे 127 बचे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ था और हमारे पास ATP से AMP बना था, तो 2 फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुए थे। तो जो हमारे पास नेट एनर्जी आती है फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से पामिटिक एसिड की, वो है 126 ATP।